issue. Very good morning, students. Today we are again with our literature section with chapter number 4. You know that very well. Up to now we have covered 3 chapters from Flamingo. Okay, so now it's time to start new chapter, chapter number 4, the rat trap. So before I start this chapter, I would like to say something about the chapter, the rat trap. The meaning of the rat trap is Chuhedani. The rat trap is Chuhedani, which is written by Selma Lagerlöf. We are going to have chapter number 4 of book number 1, Flamingo. It is the rat trap, which is written by Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf, okay? Exactly this chapter, this story gives us a psychological insight into human nature. This chapter or this story, the rat trap, Ek Chuhedani, gives us a psychological insight into human nature. An author tells us about how greed can entraps human being. Is that clear? I am repeating the line again for all of you. This chapter, the rat trap, Chuhedani, एक chapter यहाँ पर है, which is written by Selma Lagerlöf. This chapter gives us a psychological insight into human nature, and the author tells us about how greed can entraps human being. And in this chapter, we'll have loss of character. We'll have loss of character. In this chapter, we'll have loss of character. And for example, the first one will be like the rat trap sailor. The first one will be the rat trap sailor, which is basically a vagabond. एक घुमक्कड़ है जो चूहेदानी बेचता है. And the next we'll have crofter. एक बाड़े वाला है crofter. And the next we'll have blacksmith. And the next iron master. And the last one we'll have the main prominent character of the same chapter. The rat trap is which one is Adela Williamson. Adela Williamson. These characters will play a vital role in this chapter, in this story. So let's see which chapter, students. The rat trap, Chuhedani. Okay. Chapter number 4, the rat trap. The rat trap, about the author. Selma Lagerlöf was a Swedish writer. Selma Lagerlöf जो एक Swedish writer थी. Selma Lagerlöf एक Swedish writer थी. वो stories have been translated. जिनकी कहानियाँ जो है translated की गई है into many languages, बहुत सी भाषाओं में. Selma Lagerlöf was a Swedish writer. Selma Lagerlöf जो है एक Swedish writer है. वो stories have been translated into many languages. जिनकी कहानियाँ जो है बहुत सी भाषाओं में translate की गई है Selma Lagerlöf की. A universal theme runs through all of them. A universal theme runs through all of them. A universal theme runs through all of them. एक सार्वभौमिक विषय वस्तु, एक सार्वभौमिक नियम, एक सार्वभौमिक एक सत्य जो है उनकी कहानियों में देखने को मिलता है. A universal theme runs through all of them. उनकी कहानियों में जो एक यूनिवर्सल थीम जो है हमें देखने को मिलता है. ये कहानियों में, सेल्मा लेगलोफ की कहानियों में हमें एक यूनिवर्सल थीम जो है देखने को मिलता है. इज इट क्लियर? सो A universal theme runs through all of them. उनकी कहानियों में जो एक सार्वभौमिक नियम, एक सार्वभौमिक विषय वस्तु हमें देखने को मिलती है. A belief that ऐसा विश्वास है, ऐसी मान्यता है that the essential goodness in a human being can be awakened. कि मनुष्य में जो essential goodness है, कि मनुष्य में जो आवश्यक अच्छाई है, can be awakened, उसे जगाया जा सकता है through understanding and love, समझ और प्यार से. ऐसा कहा जाता है. A belief that ऐसा विश्वास है, ऐसी मान्यता है that essential goodness in a human being, कि मनुष्य में जो एक essential goodness होती है, एक आवश्यक अच्छाई होती है, can be awakened, उसे जगाया जा सकता है through understanding and love, समझ और प्यार से. The story is set amidst the minds of Sweden. The story sets amidst the minds of Sweden. ये कहानी जो है स्वीडन की खानों के मध्य लिखी गई है. ये कहानी द रैट ट्रैप चूहेदानी जो पढ़ने जा रहे हैं, which gives us a psychological insight into human nature. Okay, इस कहानी में जो है the story is set amidst the minds of Sweden. ये कहानी जो है स्वीडन की खानों के मध्य लिखी गई है. रिच इन आयरन ओर, वह स्वीडन, वह देश जो कि आयरन ओर में रिच है, लोह अयस्क में संपन्न है. एक ऐसा वस्तु है. आयरन ओर बेसिकली एक मटेरियल है. ओके, और वह स्वीडन देश जो है रिच है इन आयरन ओर, लोह अयस्क में. which figure large in the history and legends of that country, जिसका उस देश के इतिहास में, उस देश के हिस्ट्री में, उस देश के लेजेंड्स, उस देश की पुरानी कथाओं में एक फिगर है, एक बहुत ही बड़ा स्थान है, लार्ज फिगर है, जिसका कि उस देश की हिस्ट्री में, देश की पुरानी कथाओं में, लेजेंडरी में, उस देश के लेजेंड्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा स्थान है. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. The story is told somewhat. एक कहानी जो है किसी प्रकार से in the manner of a fairy tale, एक फेरी टेल के रूप में, एक परी कथा के रूप में बताई गई है और कही गई है.
द स्टोरी इज टोल्ड समवर इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। ये कहानी जो है एक फेरी टेल, एक परी कथा के रूप में जो है बताई गई है, कही गई है। इन दिस इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्मा लेगलूफ, द लाइन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टोरी, विच इज़ वो लाइन वो थी हमारे पास, आई बिलीव दैट, ऐसा विश्वास है, ऐसी मान्यता है, दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग, कि मनुष्य में जो एसेंशियल गुडनेस है, आवश्यक अच्छाई है, कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, उस अंडरस्टैंडिंग और लव से, उसे समझ और प्यार से जो है जगाया जा सकता है। मतलब हर मनुष्य में एक एसेंशियल गुडनेस छिपा रहता है, एक आवश्यक अच्छाई होती है, जिसे अंडरस्टैंडिंग और लव से, जिसे समझ और प्रेम से जो है हम अवेकन कर सकते हैं, हम लोग जगा सकते हैं। Okay, so as I told you in our last classes that we would not have difficult words in plyboard, because the same are given your textbook just after introduction of a writer. So the same are given here. Let's say one by one. Notice these expressions in the text, infer the meaning from the context. Difficult words को आपको infer करना है, expression दिए में difficult words. So let's say one by one. Keep body and soul together. कि बॉडी एंड सोल टुगेदर, बेसिकली इसका मतलब होता है एक जीवित रहना, जिंदा रहना। हालांकि बॉडी है, सोल आत्मा है, दोनों को कीप रखना मीन जीवित रहना, जिंदा रहना। कि बॉडी एंड सोल टुगेदर, शरीर और आत्मा को एक साथ रखने का मतलब यहाँ पर है जीवित रहना, जिंदा रहना। प्लॉट्स अलोंग द रोड, सड़क किनारे थके हुए चलना, सड़क किनारे थके हुए चलना। इम्पेनिट्रेबल प्रिजन का मतलब होता है अभेद जेल, एक ऐसी जेल जिसे इम्पेनिट्रेट करना, जिसे पेनिट्रेट करना मतलब भेदना बड़ा मुश्किल हो, अभेद जेल जिसे तोड़ के जाना बड़ा मुश्किल हो। इज हिज वे मतलब अपने मार्ग पर विश्राम करना, आराम करना। थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल मीन्स दुर्गति होना, बहुत ही बुरी हालत होना। थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल। हंगर ग्लीम इन हिज आइज, उसकी आंखों में भूख का चमकना, उसकी आंखों में भूख का चमकना। अनवांटेड जॉय मीन्स अनैच्छिक खुशी, एक ऐसी खुशी जो अनवांटेड है, अनैच्छिक है। नॉडिड अ हाफ्टी कंसेंट, घमंड के साथ, हाफ्टी मीन्स घमंड के साथ, नॉडिड अ हाफ्टी कंसेंट, नॉडिड मीन्स हामी भरना, घमंड के साथ हामी भरना, सर हिलाना। फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, यहाँ पे लगेगा कि एक लाइन ऑफ थॉट, एक विचार की लाइन में गिर जाना, मतलब ऐसा यहाँ पर वो मतलब नहीं है। फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट मीन टू से चिंतन धार में बहना, एक चिंता में डूब जाना। ओके, इट्स ऑल अबाउट डिफिकल्ट एक्सप्रेशन विच आर गिवन जस्ट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्मा लेगलूफ इन दिस स्टोरी, द rat trap, एक चूहेदानी। सो लेट्स से स्टोरी स्टूडेंट्स which is really important for the board examination. Okay, shall we? Yes, why not? Once upon a time there was a man. एक समय की बात है, एक आदमी था। Once upon a time there was a man. एक समय की बात है, एक आदमी था। Who went around selling small rat traps of wire. Who went around, जो यहाँ वहाँ जाता था, selling small rat traps of wire, तार से बनी हुई छोटी चूहेदानियाँ बेचने के लिए। Once upon a time there was a man, एक समय की बात है, एक आदमी था। Who went around selling small rat traps of wire. Small rat traps of wire, तो तार से बनी हुई, लोहे की तार से बनी हुई छोटी छोटी चूहेदानियाँ, rat traps बेचने के लिए यहाँ वहाँ जाता था। He made them himself at odd moments. And the meaning of odd moments, it's कभी-कभी. He made them himself at odd moments, और वह उन चूहेदानियों को कभी-कभी बनाता था। odd moments का मतलब कभी-कभी, और वह उन चूहेदानियों को जो है कभी-कभी बनाता था। From the material, उन साजो सामान से, उस मटेरियल से, he got by begging in the stores, जिन्हें वो लेकर आता था बैग करके, बैग मीन्स भीख मांग करके, at the big farms, बड़े बड़े कल कारखानों से। But even so, लेकिन यहाँ तक भी, the business was not especially profitable, लेकिन इसके बावजूद भी, इतना कुछ करने के बाद भी, the business was not so profitable, जो बिजनेस था प्रॉफिटेबल नहीं था। जो चूहेदानी बेचने का उसका जो व्यवसाय था, जो काम था उस व्यक्ति का, जो यहाँ वहाँ चूहेदानी बेचता था, वो बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल नहीं था, मुनाफा योग्य नहीं था, उसमें उससे इतना पैसा नहीं बचता था। बट परिणाम स्वरूप ही हैड टू रिजॉर्ट, उसे सहारा लेना पड़ा, परिणाम स्वरूप उसे रिजॉल्व लेना पड़ा, उसे सहारा लेना पड़ा। टू बॉट बैगिंग एंड पैटी थीवरिंग, भीख मांगने का, एंड पैटी थीवरी का मतलब छोटी मोटी थीवरी, चोरी करने का, तो उसे सहारा लेना पड़ा, रिजॉर्ट करना पड़ा। टू बॉट बैगिंग एंड पैटी थीवरी, भीख मांगने का और छोटी मोटी चोरी करने का। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, आगे वो लाइन हमारे डिफिकल्ट एक्सप्रेशन की। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, उसे रिजॉर्ट लेना पड़ा बैगिंग, भीख मांगने का और छोटी मोटी चोरी करने का, अपने आप को जीवित रखने के लिए।
अपने आप को जीवित रखने के लिए उसे चोरी करने का और भीख मांगने का सहारा लेना पड़ा, बिकॉज द बिजनेस दैट वाज बेसिकली गोइंग ऑन विच वाज नॉट प्रॉफिटेबल, वह प्रॉफिटेबल नहीं था, वह मुनाफा योग्य नहीं था। ओके, इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, लेकिन यहाँ तक कि उसके कपड़े जो है वो रैग्स थे, फटे हुए थे, बुरी हालत में थे। हिज चीक्स वर संकन, उसके गाल जो हैं काफ़ी चिपके हुए थे, काफ़ी कमज़ोर अवस्था में थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और उसकी आंखों में भूख चमक रही थी, मतलब उसकी आंखों को देखकर लगता था कि वे काफ़ी हंगरी था, काफ़ी भूखा था। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगबॉन्ड। नो वन कैन इमेजिन, कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता, हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगबॉन्ड, इस प्रकार के वैगबॉन्ड का, इस ध्यान रखना, इस रैट ट्रैप सेलर के बहुत से नाम आएंगे इसमें। कभी कभी इस रैट ट्रैप सेलर, रैट ट्रैप को सेल करने वाला, इसका नाम वैगबॉन्ड भी आएगा, इसे हम लोग वैगबॉन्ड भी कहेंगे। सेल्वा लेगालू इसे 3-4 नामों से पुकारेगी। तो द रैट ट्रैप सेलर बेसिकली इसका रैट ट्रैप सेलर है, कोई नाम यहाँ पर नहीं होगा इसका। ओके, रैट ट्रैप सेलर, वैगबॉन्ड, ट्रैम्प, बहुत से नाम इसके आने वाले हैं। ओके, दीज ऑल नेम्स आर बेसिकली बिलोंग टू द रैट ट्रैप सेलर। ओके, वैगबॉन्ड। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond, और कोई भी imagine नहीं कर सकता, और कोई भी imagine, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता how sad and monotonous life can appear to such a vagabond, किस प्रकार का दुखमयी और कितना नीरसमय जीवन जो किस प्रकार का दुखमयी और नीरसमय जीवन जो है वैगबॉन्ड का एक घुमक्कड़ का हो सकता है। वो प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड, जो अलॉन्ग द रोड सड़क किनारे थका हुआ चलता है, प्लॉट्स मीन्स थका हुआ चलना, तो सड़क किनारे थका हुआ चलता है, ऐसे वैगबॉन्ड का जीवन कितना सैड और कितना मोनोटोनस हो सकता है, इसका कोई इमेजिन नहीं कर सकता। लेफ्ट टू हिज आवर मेडिटेशन, जो सड़क किनारे प्लॉट्स करता थका हुआ चलता है, अपने ध्यान को दरकिनार करके, मतलब ध्यान नहीं रहता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस चले जा रहा है अपने मार्ग की ओर। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब यही आदमी जो है चिंतन धारा में बह गया। एक दिन ऐसा आया जब यही आदमी रैट ट्रैप सेलर वैगबॉन्ड ट्रैम्प जो है चिंतन धारा में बह गया, एक सोच में पड़ गया, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, और वह सोच, वह विचारधारा जो उसे काफ़ी एंटरटेनिंग, काफ़ी मनोरंजक कार्य लगी, काफ़ी आनंदकारी, काफ़ी मनोरंजक कार्य लगी, उसे एंटरटेनिंग लगी। He had naturally been thinking of his rat traps. He had naturally been thinking of his rat traps. कि स्वाभाविक रूप से, naturally means स्वाभाविक रूप से वह अपनी rat traps के बारे, अपनी चूहेदानी के बारे में सोच रहा था। When suddenly he was struck by the idea, जब अचानक से उसे एक विचार आया, जब अचानक से उसे एक आइडिया, एक विचार आया, that the whole world around him, कि पूरा का पूरा संसार उसके चारों ओर जो है, उसे एक विचार आया कि पूरा संसार जो उसके चारों ओर है, the whole world around him, पूरा संसार जो उसके चारों ओर है, the world with the whole world with its lands and seas, its cities and villages, पूरा का पूरा संसार जो उसके चार, उसे एक विचार है, एक आइडिया आया कि पूरा संसार जो उसके चारों ओर है, with the whole world with its lands, संपूर्ण संसार अपनी लैंड्स के साथ, अपनी भूमियों के साथ, and seas और समुद्रों के साथ, its cities अपने शहरों के साथ, and villages अपने गाँव के साथ, समुद्रों के साथ, शहरों के साथ, गाँवों के साथ, संपूर्ण संसार जो उसके चारों ओर है, उसके चारों ओर है, वाज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, कुछ और नहीं था बल्कि एक बिग रैट ट्रैप था, एक बड़ी चूहेदानी थी, कुछ और नहीं था बल्कि एक बड़ी चूहेदानी थी। एक पूरा का पूरा संसार वाज अ बिग रैट ट्रैप, एक बड़ी चूहेदानी थी। ऐसा उसे थॉट आया, ऐसा आइडिया, ऐसा विचार आया उसे कि संसार कुछ और नहीं बट एक्चुअली इट्स अ बिग रैट ट्रैप, एक बहुत ही बड़ा रैट ट्रैप है, एक बहुत ही बड़ी चूहेदानी है, द रैट ट्रैप बाय सेल्वा लेगालूफ। अब आपको समझ में आ रहा होगा इस कहानी में रैट ट्रैप का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, चूहेदानी का। ओके, वाज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस। इट स्टैंड फॉर, इट यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो पूरे होल वर्ल्ड के लिए हुआ है, पूरे संसार के लिए हुआ है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, इस संसार का जो कभी अस्तित्व नहीं हुआ, इस संसार कभी विद्यमान नहीं हुआ फॉर एनी अदर पर्पस, किसी और उद्देश्य के लिए। इस संसार का एग्जिस्टेंस जो है किसी और पर्पस के लिए कभी हुआ ही नहीं, दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, बजाय लोगों के समक्ष बेट्स डालने के लिए,
इस संसार जो है, इसका एग्जिस्टेंस जो है लोगों के सामने बेट्स डालने के लिए हुआ है। एंड द मीनिंग ऑफ बेट्स इज चारा, अट्रैक्शन। ओके, इस संसार में ऐसे बहुत से फिजिकल मटेरियल है, ऐसी बहुत सी भौतिक वस्तुएं हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं एज अ बेट, एज अ चारे के रूप में। ओके, किसी आप मॉल में घूम रहे हैं, किसी मार्केट में जा रहे हैं तो मन करता है शॉपिंग करने का, सब कुछ खरीदने का। दीज ऑल आर बेट्स एज पर द व्यूज ऑफ द रैट ट्रैप सेलर। रैट ट्रैप सेलर के अनुसार ये सारे बेट्स हैं, ये सारे अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको अपनी ओर खींचते हैं। ओके, और आपको फंसा लेते हैं अपनी चूहेदानी में, इस कहानी के अनुसार। ओके, सो इट ऑफर रिचेस एंड जॉय। ये संसार जो है आपको रिचेस एंड जॉय ऑफर करता है। ये संसार आपको खुशियाँ व आनंद जो है मुहैया करवाता है, उपलब्ध करवाता है। शेल्टर मतलब छत्र छाया, एंड फूड और खाना देता है। हीट गर्माहट देता है, एंड क्लोथिंग और वस्त्र देता है, कपड़े देता है आपको। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर चीज़ एंड पॉर्क। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस तरह से रैट ट्रैप जो ऑफर करता है चीज़ और पॉर्क, पनीर और सुअर का मांस, जिस तरह से रैट ट्रैप जो ऑफर करता है चूहे के लिए, किसके लिए? चूहे के लिए पनीर और पॉर्क। पॉर्क मीन्स बेसिकली फ्लैश ऑफ पिग, सुअर का मांस। क्योंकि चूहेदानी में जो बेसिकली जो वेस्टर्न पीपल है वो फ्लैश लगा देते हैं पॉर्क का, और इंडिया में जो बेसिकली हम लोग एक जो फिलहाल स्टेल ब्रेड होता है या फिर ब्रेड है उसका पीस हम लगा देते हैं। या कोई भी आप जो खाने की वस्तु अगर लगाएंगे तो तब भी ट्रैप हो जाएगा आराम से जो है रैट। ओके, ये संसार जो है लोगों के लिए जो है बेट्स डालने के लिए इसका एग्जिस्टेंस है। इट ऑफर रिचेस एंड जॉय। संसार जो है रिचेस एंड जॉय ऑफर करता है, मतलब रिचेस जो संपन्नताएं हैं, जॉयज मीन्स आनंद है, शेल्टर छत्र छाया है, फूड है, हीट गर्माहट एंड क्लोथिंग और वस्त्र है। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉर्क। बिल्कुल इसी प्रकार से जिस प्रकार से रैट ट्रैप जो ऑफर करता है, रैट ट्रैप ने ऑफर किया था, रैट ट्रैप ऑफर करता है, क्या ऑफर करता है रैट ट्रैप? जिस प्रकार से चूहेदानी जो है, इस प्रकार से चूहेदानी प्रदान करती है या फिर प्रस्ताव रखती है किस चीज़ का? चीज़ और पॉर्क का, मतलब पनीर का और सुअर के मांस का। चूहेदानी में पनीर रखा जाता है या फिर सुअर का मांस रखा जाता है। ट्रैप जो चूहेदानी जो रैट ट्रैप्स आते हैं वो अलग अलग टाइप्स के आते हैं। ओके, एक हुक वाला आता है, उसमें ब्रेड लगाना पड़ता है या कुछ और लगा सकते हैं आप लोग। एक जनरली एक कुछ और पोजीशन में भी आता है, उसमें माउस अगर ऊपर बैठेगा उसकी स्मेल अंदर से आती है ऊपर, तो ऑटोमेटिक ट्रैप हो जाता है उसके ऊपर बैठते ही। ओके, सुलेस है तो एग्जैक्टली एज ए रैट ट्रैप ऑफर चीज़ एंड पॉर्क। बिल्कुल इसी प्रकार से जिस तरह से चूहेदानी जो है सुअर का मांस और जो पनीर जो है ऑफर करती है। एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेड। एंड एज सून एज, और जैसे ही एनीवन कोई भी, लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, जैसे ही कोई भी टेम्प्टेड होता है, ललायित होता है, टू टच द बेड, चारे को छूने के लिए, इट क्लोज इन ऑन हिम, वह जो है चूहेदानी उसके साथ ही बंद हो जाती है। मतलब वह व्यक्ति जो है चूहेदानी के अंदर बंद हो जाता है। और जैसे कोई भी टेम्प्टेड होता है, ललायित होता है इस बेड्स को छूने के लिए, वह उस चूहेदानी के अंदर बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और इस तरह से हर चीज़ का जो अंत आ जाता है, इस तरह से हर चीज़ का अंत आ जाता है। द वर्ल्ड had of course never been very kind to him. The world had of course, ये संसार जो है सुनिश्चित रूप से never been very kind to him, कभी भी उस चूहेदानी वाले के लिए, उस रैट ट्रैप सेलर के लिए, उस वैगाबंड के लिए कभी काइंड नहीं रहा, कभी इतना दयालु नहीं रहा। The world had of course never been very kind to him, ये संसार जो है उस रैट ट्रैप सेलर के लिए कभी भी इतना जो है काइंड नहीं रहा, कभी भी इतना दयालु नहीं रहा। So it gave him unwanted joy, परिणाम स्वरूप इस संसार ने उसे अनवांटेड जॉय दी, अनैच्छिक खुशियाँ दी, ऐसी खुशियाँ जो वह कभी चाहता ही नहीं था, ऐसी खुशियाँ जो वह कभी चाहता ही नहीं था। टू थिंक इल ऑफ इट, ऐसी खुशियाँ, इसके बारे में उसने काफ़ी बुरा सोचा। इन दिस वे, इस प्रकार से इट बिकेम अ चेरिश पास टाइम ऑफ हिज, और ये सारी बातें जो हैं उसके लिए क्या बन गई? एक चेरिश पास टाइम बन गया, एक मनोरंजन का तरीका, एक मनोरंजन का साधन बन गया, उसका प्रिय मनोरंजन बन गया। दुनिया में जो भी दुख मिला, अनैच्छिक खुशियाँ मिली, उसके लिए पास टाइम रहा, उसके लिए मनोरंजन ही रहा। ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी प्लॉटिंग्स, बहुत सी ड्रीरी प्लॉटिंग्स के दौरान, बहुत सी थकाऊ भरी नीरस भरी यात्राओं के दौरान, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, उसने ऐसे लोगों के बारे में सोचा जिन्हें वह जानता था। बहुत सी नीरस भरी यात्राओं के दौरान उसने ऐसे लोगों के बारे में सोचा जिन्हें वह जानता था। वो हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नैर,
who had left themselves be caught in the dangerous snare, जिन्होंने अपने आप को जो है डेंजरस स्नैर में एक खतरनाक जाल में फंसा लिया था। ऐसे लोगों के बारे में सोचा जिन्हें वह जानता था। who had left themselves be caught in the dangerous snare, जिन्होंने अपने आप को डेंजरस स्नैर में एक खतरनाक जाल में जो है फंसा लिया था। ऐसे लोगों के बारे में सोचा जिन्हें वह जानता था और जिन्होंने अपने आप को डेंजरस स्नैर में खतरनाक जाल में फंसा लिया था। and of others who were still circling around the bed, and of others who were still circling around the bed, और वह ऐसे दूसरे लोगों के बारे में उसने सोचा जो still circling around the bed, अभी भी बेड के चारों ओर, अभी भी जो है उस चारे के चारों ओर, उस लालच के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं चूहेदानी में फंसने के लिए। इस संसार के जो भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मटेरियल थिंग्स हैं, उनको पाने के लिए लोग चक्कर लगा रहे हैं। एक बाइक लेने के बाद मन करता है आप कार ली जाए, ऐसा होता है प्रैक्टिकली। एक साइकिल लेने के बाद मन करता है बाइक ली जाए, और बाइक लेने के बाद लगता है कि एक कार ली जाए, और कार लेने के बाद लगता है कोई स्टैंडर्ड वाला एक मर्सिडीज़ लिया जाए, बहुत सी प्रॉपर्टी ली जाए, और पूरी लाइफ हम लोग सब यही करते रहते हैं एज पर द स्टोरी ऑफ द चैप्टर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज क्रूजिंग अलॉन्ग द रोड, क्रूजिंग का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए जाना, एंड द मीनिंग ऑफ क्रूजिंग इज लड़खड़ाते हुए जाना। वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम को, शाम का मतलब है कि बेसिकली डिसेंडिंग है, जो फिलहाल जो लाइट डिसेंडिंग हो रही है, अंधेरा छाने को है। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज क्रूजिंग अलॉन्ग द रोड, एक अंधेरी शाम को जैसे वह सड़क किनारे जो है फिलहाल लड़खड़ाते हुए जा रहा था, he caught sight of a little grey cottage, he caught sight of a little grey cottage, उसे ग्रे रंग की, एक ग्रे कलर की जो है छोटी सी कॉटेज, कुटिया दिखाई दी। जैसे ही वे एक शाम को जो है सड़क किनारे लड़खड़ाते हुए जा रहा था, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, he caught sight of a little cottage, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, उसे रोड साइड जो है सड़क किनारे एक कॉटेज दिखाई दी जो ग्रे कलर की थी। कैसी थी? ग्रे कलर की थी। कॉटेज एक कुटिया दिखाई दी, एक झोपड़ी दिखाई दी। and he knocked on the door, और उसने दरवाजे पे नॉक किया। क्या किया? दरवाजे पर नॉक किया, दरवाजे पे खटखटाया। ऑन द डोर, दरवाजे पे, टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, टू आस्क शेल्टर, ही नॉक्ड एट द डोर टू आस्क फॉर द शेल्टर, ओके, एट द नाइट, और फॉर द नाइट, और रात्रि में शेल्टर के लिए, रात्रि में छत्र छाया के लिए, आराम के लिए, विश्राम के लिए उसने दरवाजे पे खटखटाया, उस कुटिया के दरवाजे पे खटखटाया। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, उसे रिफ्यूज़ नहीं किया गया था, उसे मना नहीं किया गया था। अब ऐसा कहेंगे मना क्यों करेंगे? उसे मना ही किया जाता है, उसे रिफ्यूज़ ही किया जाता है, उसे हमेशा रिफ्यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे आज रिफ्यूज़ नहीं किया गया। नॉर ही वाज रिफ्यूज, उसे मना नहीं किया गया था, इनकार नहीं किया गया था उसे। इंस्टीड ऑफ द सोर फेसेस, और सोर फेसेस का मतलब होता है कड़वे चेहरे, बुरे चेहरे। सोर का मतलब यहाँ पर क्या? बुरे चेहरे, भयानक चेहरे। इंस्टीड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरीली मैच हिम, और ऐसे बुरे चेहरे, ऐसे कड़वे चेहरे जो ऑर्डिनरी सामान्यतः उसे मिलते थे। ओके, जब मुलाकात करने पर, रात्रि के समय छत्र छाया की मांग करने पर, कुछ खाना मांगने पर, पैसा मांगने पर, भीख मांगने पर, जिस तरह के सोर फेसेस उसे मिला करते थे ऑर्डिनरी सामान्यतः। द ऑनर, जो मकान मालिक था, जो ऑनर था उस कॉटेज का, कुटिया का, उस ग्रे कॉटेज का, वो वाज एन ओल्ड मैन, जो बुजुर्ग आदमी था। कौन था? एक बुजुर्ग आदमी था। विदाउट वाइफ, बिना पत्नी के, और चाइल्ड, बिना बच्चे के। वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, वाज हैप्पी टू गेट समवन, किसी समवन मतलब किसी व्यक्ति को पाकर, किसी व्यक्ति को पा करके बड़ा हैप्पी था, बड़ा खुश था। टू टॉक, बात करने के लिए, इन हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन में। बिना पत्नी के, बिना बच्चों वाला बूढ़ा आदमी अपने अकेलेपन में, अपने लोनलीनेस में किसी को पा करके बड़ा ही प्रसन्न था, बड़ा ही खुश था, बात करने के लिए हैप्पी था। इमीडिएटली, अचानक से, बिना पूछे, अचानक से, इमीडिएटली, अचानक से, he put the porridge pot on the fire, उसने फायर पर porridge pot चढ़ा दिया, मतलब दलिए का बर्तन जो होता है पॉट चढ़ा दिया porridge के लिए, porridge में दलिया। So immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper, और अचानक से उसने porridge pot जो है फायर पे चढ़ाया, रखा, और उसे सपर दिया। सपर का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ सपर इज द लास्ट मील ऑफ द डे, दिन का जो अंतिम मील होता है, इट इज़ नोन एज सपर। सपर मीन्स दिन का जो अंतिम खाना होता है। दैट यू कैन कॉल अ डिनर विच इज़ बेसिकली टेकन बाय आफ्टर डिनर, मतलब आखिरी मील जो दिन का आपका होता है, इट इज़ नोन एज सपर। इट मे बी अ ग्लास ऑफ मिल्क, ओके, और सम डेजर्ट्स और स्वीट्स, वी कैन से दैट, which you take at the night finally, okay, it's known as supper. Where we are?
Okay, immediately he put the body's pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll. उसने अपनी tobacco roll से, तम्बाकू के रोल से, एक बहुत ही बड़ी सिगरेट होती है, उस रोल से उसने एक स्लाइस काटी. मतलब रोल होता है बड़ा सारा एक सिगरेट टाइप का, उसको दो पीस किए और दोनों ने उसे पिया. ओके, देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस. उसके बाद उसने बिग स्लाइस, बड़ी सी स्लाइस काटी फ्रॉम हिज टोबैको रोल, अपने तम्बाकू के रोल से, बड़ी सिगरेट से. दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज आर्म, जो कि स्ट्रेंजर्स के पाइप के लिए, मतलब स्ट्रेंजर के लिए और खुद के लिए इनफ थी, पर्याप्त थी. जो उसने पाइप काटा, जो टोबैको रोल से स्लाइस काटी, वो उसके लिए, खुद के लिए, उस ओल्ड मैन के लिए, और उस स्ट्रेंजर, उस अजनबी के लिए जो एक्चुअली रैक्टर सेलर था, उसके लिए काफ़ी था पीने के लिए. फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक्स ऑफ कार्ड्स. और आखिर में उसने पुराने जो है कार्ड्स निकाले, पुराने ताश के पत्ते निकाले. एंड प्लेड मेजोलिस, और मेजोलिस खेला. मेजोलिस क्या होता है? एक कार्ड्स गेम होता है. ताश पत्ती उससे हम लोग बोलते हैं, ताश पत्ती मतलब ताश से खेले जाने वाला गेम जो होता है. फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स. और आखिर में उसने जो है कार्ड्स के पुराने पैक निकाले, पुराने ताश पत्ती निकाले. एंड प्लेड मेजोलिस, और मेजोलिस खेला विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, अपने गेस्ट के साथ बेड टाइम तक, मतलब सोने के समय तक जो है उसने मेजोलिस खेला अपने गेस्ट के साथ, अपने अतिथि के साथ. कब तक? बेड टाइम तक, सोने के समय तक. बुजुर्ग आदमी बड़ा खुश था किसी को पा करके. अब बात करने के लिए उसका मनोरंजन हो गया खाली समय में. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. The old man was just as generous. वह बुजुर्ग आदमी जो है उतना ही उदार था with his confidences, अपनी गुप्त बातों के लिए, as with his porridge and tobacco, जितना कि उदार वह porridge और tobacco के साथ था. वह बुजुर्ग आदमी जो ऑनर था, जो माली था, वह उतना ही जनरस था, उतना ही उदार था अपने कॉन्फिडेंसेस के लिए, अपनी गुप्त बातों के लिए. जितना जनरस वह है, जितना उदार जो है वह पॉरिज और टोबैको के लिए था, तम्बाकू और दलिया के लिए था. इतनी उदारता से उसने तम्बाकू और दलिया पिलाया और खिलाया. उतनी ही उदारता से उसने अपनी कॉन्फिडेंसेस, यहाँ पे कॉन्फिडेंस का मतलब विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंसेस का मतलब गुप्त बातें हैं, सीक्रेट थिंग्स हैं. उतनी ही उदारता से उसने अपनी गुप्त बातें उसको बताई. इसको बताई, स्ट्रेंजर को बताई, अपनी कॉन्फिडेंसेस, अपनी गुप्त बातें बताई. उतनी ही जनरस के साथ, उतनी जनरॉसिटी के साथ, जितनी जनरॉसिटी से उसने अपने उस स्ट्रेंजर को जो है पॉरिज खिलाया था और टोबैको पिलाया था, दिया था. द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस. और उस गेस्ट को, अतिथि को एक ही बार में सूचित कर दिया गया, बता दिया गया, दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि उसके संपन्नता के दिनों में, मतलब जब मैं संपन्न हुआ करता था, मैं जब संपन्न हुआ करता था, मतलब आज तो मैं ओल्ड मैन हूँ, कभी एक समय ऐसा भी था जब मैं प्रॉस्पर था, तो बड़ा संपन्न था, बड़ा धनी था. उस आदमी ने बताया स्ट्रेंजर को, वैगेबंड को, उसे एक ही बार में इन्फॉर्म कर दिया गया दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्राफ्टर एट रामसो आयरन वर्क. इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि अपनी संपन्नता के दिनों में, हिज होस्ट का मतलब आतिथ्य सत्कार करने वाला. वो कौन है यहाँ पर? ओल्ड मैन है. उसे बता दिया कि जो आपका जो होस्ट है, मतलब मैं ओल्ड मैन, अपनी संपन्नता के दिनों में जो है एक बहुत ही, मैं अपनी संपन्नता के दिनों में रामसो आयरन वर्क पर, रामसो इज द नेम ऑफ प्लेस, रामसो की लोहे की फैक्ट्री में क्राफ्टर था, बाड़े वाला था. क्या था? बाड़े वाला था, क्राफ्टर था. अपनी संपन्नता के दिनों में, मतलब जब वह जवानी में या फिर किसी समय पहले जब वहाँ पर काम करता था, बड़ा संपन्न हुआ करता था. ये इन्फॉर्मेशन उसने जो अपने अतिथि को दिया. ऐसा कहा कि जो तुम्हारा जो होस्ट है, मतलब मैं खुद, तुम्हारा सत्कार करने वाला एक संपन्न व्यक्ति हुआ करता था, क्राफ्टर हुआ करता था, रामसो की आयरन वर्क्स, रामसो की आयरन की फैक्ट्री में. एंड आई हैड वर्कड ऑन द लैंड. और उसने जो है, मतलब मैंने का मतलब ओल्ड मैन ने उस ज़मीन पर काम किया था, रामसो की ज़मीन पर काम किया था. Now that he was no longer able to do day labor, now that he was no longer able to do day labor, and now that he was no longer able to do day labor. अब वह day labor का मतलब है दिन का labor, दिन की कड़ी मेहनत, मजदूरी करने में सक्षम नहीं था. अब बुजुर्ग हो गया था, ओल्ड मैन था, अब वह मेहनत करने में सक्षम नहीं था. It was his cow, यह तो उसकी गाय थी, यह तो उसकी काव थी, विच सपोर्टेड हिम, जिसने उसको सहारा दिया था. वाइफ नहीं है, बच्चे नहीं है,
वह तो उसकी गाय थी जिसने उसको सहारा दिया था। यस दैट बॉशी, हाँ वही बॉशी, बॉशी मीन्स काव, हाँ वही बॉशी वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी, जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी, जो बड़ी असाधारण थी, बड़ी अतुलनीय थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, तो हर दिन जो है क्रीमरी के लिए, मक्खनशाला के लिए, डेयरी के लिए दूध दे सकती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट, और लास्ट मंथ जो है उसे दूध के बदले में, मिल्क के बदले में पेमेंट मिला, सैलरी मिला, तनख्वाह मिला, बचत मिली, पैसा मिला। कितना मिला? 30 kroner। कितना मिला? 30 kroner। Kroner is a currency like we have rupiah, like Americans and like Britishers have dollars. It's a kroner. It's a kroner. Here we have kroner. Okay. So and last month he had received all of 30 kroner in payment, और लास्ट मंथ में जो है all of मतलब संपूर्णतः पूरा जो कमाया पैसा उसने मिल्क में डेयरी से अपनी बॉशी, अपनी काव के द्वारा उसे मिले थे 30 kroner। मतलब बैलेंस जो रहा, जो बचत रही, कितना रहा सेविंग उसकी? 30 kroner की रही, 30 kroner उसने कमाया। ओके, द स्ट्रेंजर। Okay, I think it's enough for today's. The next we'll have our next class. Thank you and have a nice day. Thank you.